Hello students, this is fifth lecture of Algebra of Linear Transformations. In this lecture, we study about sum of two linear transformations, product of two linear transformations, scalar multiplication of a linear transformation, null transformation, identity transformation, etc. Let us see, let us start first of all, scalar multiplication of a linear transformation. Scalar multiplication of a linear transformation. We shall see that when we multiply a linear transformation by a scalar, the linear transformation thus obtained will also a linear transformation. Let T from UF to VF be a linear transformation and lambda be a scalar. Then lambda t is defined by, first of all we define lambda t is defined by, lambda t is a mapping from the same domain to the same codomain such that lambda t image of alpha equal to lambda t image of alpha for all alpha belonging to U. This is the definition of lambda t. Now we shall show that this lambda t is also linear transformation. Linearity of lambda t. Linearity of lambda t. Lambda t of A alpha plus B beta equals to, by this definition, this is lambda T of A alpha plus B beta. Since T is linear transformation, therefore T preserves linearity here. This is equal to lambda curly bracket A T of lambda plus B T of beta, and this will happen for all A, B belonging to field F, semicolon, for all alpha, beta belonging to domain U. Logic लिखना चाहे लिखना, since T is linear. इक्वल के नीचे इक्वल इक्वल्स टू लैम्डा ए टी ऑफ अल्फा प्लस लैम्डा बी टी ऑफ बीटा. लैम्डा ए बी all these three are scalars, therefore this will be equal to a lambda t of alpha plus b lambda t of beta equals to a lambda t of alpha plus b lambda t of beta for all a, b belonging to F, for all alpha belonging, beta belonging to domain U. Therefore, lambda t is a linear transformation whenever t is a linear transformation. तो हमने ये देख लिया कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की स्केलिंग करने यानी उसमें स्केलर से मल्टीप्लाई करना, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा वो भी लीनियर होता है. नेक्स्ट वी शैल सी सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस. सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस. लेट T1 from UF to VF and T2 from UF to VF be two linear transformations. Then पहले तुम सम को डिफाइन करना. T1 plus T2 is defined by
वैसे ही जैसे सम फंक्शन डिफाइन होता है, इंटरमीडिएट से ही आप पढ़ रहे हो, सम ऑफ फंक्शंस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन वगैरह वगैरह, इज डिफाइंड बाय T1 plus T2 फ्रॉम द सेम डोमेन टू द सेम कोडोमेन, ना डोमेन चेंज होगा ना कोडोमेन चेंज होगा, सच दैट T1 plus T2 of alpha equal to T1 of alpha plus T2 of alpha for all alpha belonging to domain U. This is definition of sum of two functions, sum of two mappings. अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि T1 T2 तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T1 प्लस T2 भी लीनियर होगा. लीनियरिटी ऑफ T1 प्लस T2 तरीका वही जैसे कि लेमडा टी वाला किए थे. T1 प्लस T2 ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा इक्वल्स टू, डेफिनेशन देखो ये लिखा है, T1 ऑफ अल्फा प्लस T2 ऑफ अल्फा, तो ये हो जाएगा T1 ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा प्लस T2 ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा. चूंकि T1 भी लीनियर है, T2 भी लीनियर है, तो ये दोनों लीनियरिटी को प्रिजर्व करेंगे. प्रिजर्व कराइए, A T1 ऑफ अल्फा प्लस B T1 ऑफ बीटा प्लस A T2 ऑफ अल्फा प्लस B T2 ऑफ बीटा. This will hold for all A B belonging to field F, alpha beta belonging to domain U. Implies that, equal to A कॉमन ले लिया, A वाले दो टर्म्स हैं, T1 ऑफ अल्फा प्लस T2 ऑफ अल्फा प्लस B T1 ऑफ बीटा प्लस T2 ऑफ बीटा. इक्वल्स टू ए, फिर वही डेफिनेशन लगाई सम वाला, तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2 ऑफ अल्फा प्लस B T1 प्लस T2 ऑफ अल्फा. फिर से एक बार लिख दीजिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू फील्ड एफ सेमी कोलन अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू डोमेन यू. चेक करिए दिस है ना, ए T1 प्लस T2 ऑफ अल्फा प्लस B T1 प्लस T2 ऑफ बीटा. देयरफॉर T1 plus T2 is linear whenever T1 and T2 are linear. दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का सम भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है. इसके बाद जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा ये करा. जीरो और नल ट्रांसफॉर्मेशन. नल ट्रांसफॉर्मेशन को ओ कैप से डिनोट करते हैं. ओ कैप फ्रॉम UF टू VF इज कॉल्ड जीरो और नल ट्रांसफॉर्मेशन. जीरो और नल ट्रांसफॉर्मेशन इफ ओ कैप डोमेन के ईच एलिमेंट को इसके जीरो पर मैप कर दे. यानी ओ कैप ऑफ अल्फा इक्वल टू थीटा डैश फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू यू. थीटा डैश के बारे में सूचना दे दें. थीटा डैश बीइंग जीरो वेक्टर ऑफ कोडोमेन, थीटा डैश बीइंग जीरो वेक्टर ऑफ कोडोमेन कौन है? V. यही नल फंक्शन की परिभाषा होती है, डेफिनेशन. नल फंक्शन डोमेन के हर एलिमेंट को कोडोमेन के जीरो पर ले जाके पटक देता है. अब हम ये बताने जा रहे हैं कि नल फंक्शन लीनियर होता है. लीनियरिटी ओ कैप ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा इक्वल टू थीटा डैश फॉर ऑल
ए बी बिलोंगिंग टू एफ सेमीकोलन अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू यू एंड ए ओ कैप ऑफ अल्फा प्लस बी ओ कैप ऑफ बीटा इक्वल टू ए थीटा डैश प्लस बी थीटा डैश इक्वल टू थीटा डैश प्लस थीटा डैश इक्वल टू थीटा डैश फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू एफ सेमीकोलन अल्फा कामा बीटा बिलोंगिंग टू यू। तो इसकी वैल्यू इक्वल आई है ना, और ये जो वैल्यू आई है इसमें ए बी अल्फा बीटा किसी कोई भूमिका नहीं है, इसीलिए सभी के लिए लागू हो रहा है। देयरफॉर ओ कैप ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए ओ कैप ऑफ अल्फा प्लस बी ओ कैप ऑफ बीटा फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एफ सेमीकोलन फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू यू। Thus O cap is linear. Thus O cap is a linear transformation. ये linear transformation है। Identity transformation next. Identity transformation. Identity mapping I फ्रॉम वी एफ टू वी एफ। आइडेंटिटी मैपिंग जो है उसमें डोमेन कोडोमेन समान होता है, सच दैट आई ऑफ अल्फा इक्वल टू अल्फा, एलिमेंट और उसकी इमेज आइडेंटिकल होती है, इसीलिए नाम आइडेंटिटी पड़ा है। फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू वी, यही है आइडेंटिटी मैपिंग। ये भी लीनियर होता है, लीनियरिटी। आई ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल्स टू ए अल्फा प्लस बी बीटा फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू एफ अल्फा कामा बीटा बिलोंगिंग टू डोमेन वी। आई किसी भी एलिमेंट को उसी पर मैप करता है, तो आई ए अल्फा प्लस बी बीटा को ए अल्फा प्लस बी बीटा पर ही मैप करेगा। और ए अल्फा को हम लिख दिए आई अल्फा प्लस बी और बीटा को लिख दिया हमने आई बीटा, हो गया, लीनियरिटी प्रिजर्व हो गई। फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एफ अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू वी, देयरफॉर आई इज लीनियर। इसे लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन को आइडेंटिटी ऑपरेटर कहते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर, नामकरण को लेकर थोड़ा सा मत भिन्नता है। जैसे कि कुछ लोग हैं इसको भी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ही बोलते हैं, और कुछ लोगों का मत ये है कि आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन तो है लेकिन इसमें डोमेन कोडोमेन बराबर है, इसलिए इसको हम आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन न बोल करके आइडेंटिटी ऑपरेटर बोलेंगे। एक मत ऐसा भी है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन किसी को बोलेंगे नहीं, सबको ऑपरेटर बोलेंगे। तो अब इस विवाद में हम पढ़ना नहीं चाहते, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर जो भी बोलिए। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हम लोग पढ़ेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, देखो जब आप कैलकुलस पढ़े थे इंटरमीडिएट में तो वहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस भी पढ़े थे और कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस भी पढ़े थे। दो फलनों का गुणन भी पढ़े थे और दो फलनों का संयोजन भी पढ़े थे। हिंदी बोल दिया ना, दोनों अलग अलग था। कंपोजिट फंक्शन जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसे डिफाइन करते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग डोमेन ऑफ जी ओ एफ। लेकिन प्रोडक्ट फंक्शन जी डॉट एफ ऐसे लिखते थे, ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग डोमेन। दोनों में बहुत फर्क है, देखो राइट हैंड साइड में बहुत फर्क है। तो कैलकुलस की दुनिया में कंपोजिट फंक्शन प्रोडक्ट फंक्शन अलग अलग होता है। लेकिन अब कैलकुलस के अलावा जो और जगत है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, जैसे ग्रुप थियरी में, चाहे लीनियर स्पेस थियरी में, चाहे रिंग थियरी में, फील्ड थियरी में, कहीं भी अगर मैपिंग की बात हो रही होगी तो ऐसा प्रोडक्ट कहीं नहीं आएगा। एक कैलकुलस वाला जो प्रोडक्ट है वो कहीं नहीं आएगा।
हर जगह कंपोजिट आएगा, कंपोजिट ऑफ टू मैपिंग्स। तो चूंकि प्रोडक्ट कहीं आएगा ही नहीं, प्रोडक्ट है ही नहीं है, तो प्रोडक्ट वाले नोटेशन को हम यूज करेंगे। कोई खतरा नहीं ना, कंफ्यूजन कोई खतरा नहीं, तो GOF ना लिख करके हम GF लिखेंगे। ये बात समझ लिए। कंपोजिशन को हम मल्टीप्लिकेशन, कंपोजिट को हम प्रोडक्ट कहेंगे, GOF को हम GF लिखेंगे, O लिखना छोड़ देंगे। इसलिए लिखेंगे क्योंकि ऐसा लिखने से कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। कैलकुलस की दुनिया में गलती नहीं करिएगा, वहाँ ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब देखें इसको ध्यान से। कंपोजिट ऑब्लिक प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, यहां प्रोडक्ट का मतलब है कंपोजिट। लेट T1 फ्रॉम UF टू VF and T2 from VF to WF be two linear transformations, then the product T2 और T1, उसको हम लिखेंगे T2 T1, ब्रैकेट में एक बार मैं लिख देना चाहता हूं, दैट इज T2 और T1 ये is defined by T2 T1 will be a mapping from UF to WF such that T2 T1 of alpha equal to T2 of T1 of alpha for all alpha belonging to U। डायग्राम बना के बात को और स्पष्ट तरीके से रखिए। U, V, W तीन लीनियर स्पेसेस हैं ओवर द सेम फील्ड F, फील्ड सबका कॉमन है। U से V जो मैपिंग है वो है T1, दिस करस्पॉन्डेंस इज T1। V से W वाला जो करस्पॉन्डेंस है वो T2 है। तो आपको मालूम है U से W जो करस्पॉन्डेंस होगा वो T2 और T1 होगा। इसी T2 और T1 को T2 T1 लिखा जा रहा है। ठीक है भाई। तो अगर ये अल्फा है तो इसकी इमेज यहां पे हम लिख दे रहे हैं T1 ऑफ अल्फा ये, और फिर यहां पे क्या लिख दें T2 ऑफ T1 ऑफ अल्फा ऐसा। तो T2 T1 ऑफ अल्फा इज इक्वल टू T2 ऑफ T1 ऑफ अल्फा, यही डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो अब हम ये दिखाने जा रहे हैं कि T2 T1 भी लीनियर है। अगर T1 लीनियर है, T2 लीनियर है, तो इनका प्रोडक्ट भी लीनियर है। ध्यान रहे, जब T2 T1 एग्जिस्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं T1 T2 एग्जिस्ट करे, जैसे कि इस केस में नहीं करेगा। अगर ये तीनों हम समान कर दें तब T2 T1 भी एग्जिस्ट करेगा, T1 T2 भी एग्जिस्ट करेगा। असल में इसको एग्जिस्ट करने के लिए शर्त क्या है कि पहली मैपिंग का जो कोडोमेन है वो दूसरी मैपिंग का डोमेन बन जाए। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं पढ़ रहा, आप इंटरमीडिएट से सब बातें पढ़ रहे। लीनियरिटी T2 T1 ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा इक्वल टू डेफिनेशन T2 ऑफ T1 ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा इक्वल टू T2 ऑफ, इसे खोलिए क्योंकि T1 लीनियर है, A T1 ऑफ अल्फा प्लस B T1 ऑफ बीटा। लॉजिक लिखिए, सिंस T1 इज लीनियर, चूंकि T2 भी लीनियर है इसलिए T2 से इसे ओपन करिए, इक्वल टू A T2 ऑफ T1 ऑफ अल्फा प्लस B T2 ऑफ T1 ऑफ बीटा। लॉजिक लिखिए, सिंस T2 इज लीनियर इक्वल्स टू A, व्हाट इज दिस? दिस इज T2 T1 ऑफ अल्फा प्लस B
this is T2 T1 of beta and it holds for all A B belonging to F semicolon alpha beta belonging to U. हो गया ना? देखो A T2 T1 of alpha plus B T2 T1 of beta. Therefore T2 T1 is linear whenever T1 and T2 are linear. ऐसा. तो अब हमने जब प्रोडक्ट डिफाइन कर लिया तो हम पावर डिफाइन करने जा रहे हैं. पावर ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लिख करके हम लीनियर ऑपरेटर लिख रहे हैं. लीनियर ऑपरेटर. पावर से मतलब टी टी ये, तो टी टी का मतलब क्या हो गया? टी स्क्वायर. अब टी टी तभी डिफाइन होगा जब ये डोमेन को डोमेन एक ही होगा, तभी टी टी डिफाइन होगा. क्योंकि आपने टी लिया, यू से वी, ये टी है, टी, फिर टी लेना है. तो अब टी लेंगे तो कौन सा टी लेंगे? यू से वी, वी से कहाँ जाएंगे? डब्ल्यू. तो अब ये बनेगा क्या? अब ये इसे भी टी कहोगे? कैसे टी कहोगे? टी तो यू से वी है ना, तो इसलिए सब बराबर लेंगे. वी से वी, वी से वी, वी से वी. ये देखो, तो जो टी टी हो जाएगा दिस वो भी वी से वी होगा. बैठा. पावर ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर. टी स्क्वायर मीन्स टी टी माने टी ओ टी. टी क्यूब मीन्स टी स्क्वायर टी. इसी प्रकार से चलता रहेगा. टी टू द पावर एन मीन्स टी टू द पावर एन माइनस वन टी. ये पावर है. ये सब लीनियर ऑपरेटर. टी लीनियर ऑपरेटर है तभी ये डिफाइन होगा. लीनियर ऑपरेटर माने वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसका डोमेन कोडोमेन समान हो, इक्वल हो, एक ही हो, सब वी टू वी. अब इसके कुछ काइंड्स हैं. नंबर 1, a linear operator T from VF to VF is called an idempotent linear operator if T square equal to T. Number 2, a linear operator T from VF to VF is called an involutory linear operator. Is called an involutory linear operator if T square equal to identity operator. Next, third, a linear operator T from VF to VF is called a nilpotent linear operator. A nilpotent linear operator if there exists least positive integer n such that
टी टू द पावर एन इक्वल टू नल ऑपरेटर। एन को इंडेक्स ऑफ निल पोटेंसी या ऑर्डर ऑफ निल पोटेंसी भी कहते हैं। कुछ कुछ मैट्रिक्स जैसी बातें हो रही है ना, मैट्रिक्स में भी आप पढ़े हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स। आइए देखें। फोर्थ, a linear operator T from VF to VF is called a periodic matrix of period n if n is the least positive integer, n is the least positive integer such that t to the power n plus 1 is equal to t। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स से इसको जोड़िए, अगर n की जगह 1 कर दें तो t स्क्वायर इक्वल टू t हो जाएगा। इसका मतलब 1 पीरियड वाला पीरियोडिक मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हुआ। एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं, सॉरी ऑपरेटर बोलिए भाई। एन आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर, आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर इज द पीरियोडिक ऑपरेटर। मैट्रिक्स लिख दिया हमने झटके में, ऑपरेटर लिखिए, तभी दिमाग में हमारे मैट्रिक्स 2-3 बार निकल गया, ध्यान रखिएगा। लीनियर पीरियोडिक ऑपरेटर ऑफ पीरियड एन, ठीक है। एन आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर इज द पीरियोडिक ऑपरेटर ऑफ पीरियड 1। ये था। कुछ एग्जाम्पल्स हम लिख देना चाहेंगे और बहुत ही सिंपल होते हैं, इनको आप वेरीफाई खुद ही कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत ही आसान। एग्जाम्पल्स नंबर 1, T from R2 to R2 such that T of xy equal to ordered pair x0 is idempotent। मैं इसको तुरंत करके दिखा दे रहा हूं। जैसे हम टी स्क्वायर कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो टी स्क्वायर ऑफ एक्स वाई बराबर होगा टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू टी ऑफ एक्स वाई माने एक्स जीरो। ये अब देखो, किसी भी एक्स वाई का टी इमेज क्या हो जाएगा, एक्स रहेगा, वाई खत्म कर देंगे। तो इसका एक्स इमेज, इसका टी इमेज निकालोगे तो क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट रहेगा, ये खत्म कर देंगे तो बेचारा पहले से ही खत्म है। तो ये आ गया एक्स जीरो। एंड व्हाट इज एक्स जीरो? टी ऑफ एक्स वाई बाई दिस गिवन डेफिनेशन फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंगिंग टू डोमेन R2। तो अब इक्वलिटी वाला हिसाब किताब लगा दें। देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी एंड सो टी इज आइडेम्पोटेंट। इसी तरह से चेक करना है सबको। एग्जाम्पल 2, example 2, T from R2 to R2 such that T of ordered pair xy is equal to 0x is nilpotent। अब कितना इसका इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी होगा ये हम चेक करते हैं। तो निलपोटेंट के लिए ना टी स्क्वायर निकालो, टी क्यूब निकालो, टी टू द पावर 4 निकालो, तब तक निकालते जाओ जब तक नल ऑपरेटर आपको प्राप्त न हो जाए। चेक करें, टी स्क्वायर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू टी ऑफ, है ना, 0x। ये कैसा है? ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट को 0 कर देना है, फर्स्ट को 0 कर देना है और सेकंड की जगह फर्स्ट लिख देना है। तो फर्स्ट को 0 कर देना है और सेकंड की जगह फर्स्ट लिख देना है। तो ये आ गया। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज
टी ऑफ सॉरी null matrix of ordered pair 0 0 sorry null matrix of ordered pair xy for all ordered pair xy belonging to R2 इक्वलिटी वाला डेफिनेशन लगा दें implies that t square equal to null matrix therefore t is nilpotent operator t is nilpotent operator with ऑर्डर ऑफ nilpotency या इंडेक्स ऑफ nilpotency 2 क्योंकि 2 इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट टी स्क्वायर इक्वल टू ओ कैप। अगर ये ओ कैप ना आता तो फिर हम टी क्यूब कैलकुलेट करते, अगर ओ कैप आ जाता तो फिर हो जाता nilpotent विथ ऑर्डर ऑफ nilpotency 3। ऐसे ही चलता रहता है। टी इज nilpotent ऑपरेटर विथ ऑर्डर ऑफ nilpotency, ऑर्डर ऑफ nilpotency 2। Example 3, T from R2 to R2 such that T of xy equal to yx for all ordered pair xy belonging to R2 is involuntary, बहुत ही सिंपल। स्टार्ट लीजिए। टी स्क्वायर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इक्वल टू टी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इक्वल टू टी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर वाई एक्स ना। देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, एक्स वाई वाई एक्स कर देना है, तो फिर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई हो जाएगा। और एक्स वाई को हम लिख दें आई ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू डोमेन R2। देयरफॉर टी स्क्वायर इक्वल टू आई एंड हेंस टी इज इनवॉल्यूटरी बाई डेफिनेशन। आखिरी एक और देखा पीरियोडिसिटी वाला। फोर्थ, टी फ्रॉम R3 to R3 such that T of 3 tuple XYZ equal to YZX for all 3 tuple XYZ belonging to R3 is periodic with period 3 पीरियड का मतलब काम भारी हो गया, with period 3। ये डेफिनेशन देख लीजिए। एक्स वाई जेड का इमेज कौन है, कहां से शुरू है, वाई से साइक्लिक रोटेशन है, वाई जेड एक्स यानी सेकंड से स्टार्ट करके साइक्लिक रोटेशन में। स्टार्ट टी स्क्वायर ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू टी ऑफ एक्स वाई जेड माने वाई जेड एक्स, यही दिया हुआ है। अब फिर इसका कितना सेकंड से शुरू करना है, सेकंड से साइक्लिकली घुमा देना है, जेड एक्स वाई। नेक्स्ट टी क्यूब ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू टी ऑफ या टी स्क्वायर ऑफ एक्स वाई जेड, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, इक्वल टू टी स्क्वायर ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू टी स्क्वायर ऑफ एक्स वाई जेड, ये लिखा हुआ है जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई। अब फिर इसका टी इमेज निकालोगे तो एक्स से शुरू होगा, तो हो जाएगा एक्स वाई जेड। ये पीरियड 3 नहीं होगा, पीरियड फिर 2 हो जाएगा ना। देखो जरा सही है कि ना, टी स्क्वायर टी वाई जेड एक्स, ये हो जाएगा जेड एक्स वाई, ठीक है। फिर टी क्यूब निकालो तो टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी जेड एक्स वाई, और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक, एक बार और, ठीक, पीरियड 3 रहेगा। टी टू द पावर 4 एक्स वाई जेड इक्वल टू टी क्यूब ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू टी क्यूब ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू टी क्यूब ऑफ एक्स वाई जेड इज एक्स वाई जेड। और फिर एक्स वाई जेड का टी इमेज क्या होगा, है ना, वाई जेड एक्स।
वाई जेड एक्स, ये क्या आ गया, ये आ गया टी ऑफ एक्स वाई जेड फॉर ऑल 3 टपुल एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू R3। अब आप इक्वेट करिए, देयरफॉर टी टू द पावर 4 इक्वल टू टी, दैट इज टी टू द पावर 3 + 1 इक्वल टू टी, यानी टी टू द पावर n + 1 इक्वल टू टी। तो ये पीरियोडिक हो गया, पीरियड कितना होगा 3, ये लिखा हुआ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू, आगे बात जारी रहेगी।